Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2017 paper Civil Law 2. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. As I always mention, this is the booklet number, paper Civil Law 2, Series B, 100 marks, 1 hour, 50 questions, and no negative marking. So question number 1 is मैच करना है तो डेफिनेशंस कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट में, ऑब्वियसली सेक्शन 2 में है. अब ए का वन इन्होंने देखो 3 में दिया है. फिर कटिंग और विदहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई, ये सेक्शन 11 है. अब देखिए सी का 3 जो है 2 में है, इसका मतलब 2 ये कैंसिल हो गए. फाइन प्रीमियम नॉट टू बी चार्ज्ड, ये है सेक्शन 8. एंड लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन गुड रिपेयर, ये लिख दिया, ये सेक्शन 13. क्या बन गया इसका? 1432. तो 1432 कहाँ पर है? डी इज द आंसर. Exercise 2, no person shall convert a residential building into a non-residential building except with the permission in writing to the controller. क्या स्टेटमेंट ठीक है? यह स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 12 में. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 3, स्टेटमेंट 1 है, एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर मे विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर or such longer period as appellate authority may allow for reason to be recorded in writing prefer an appeal. तो 15 डेज का टाइम है अपील के लिए या फिर 30 डेज का है? तो टाइम पीरियड 15 डेज का, तो स्टेटमेंट 1 होगी करेक्ट. फिर स्टेटमेंट 2 देखिए 30 डेज लिखा हुआ, ये हो गया रॉन्ग. फिर स्टेटमेंट 3 जो लिखा हुआ है, इन कंप्लीटिंग द पीरियड टाइम टेकन टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड, ये बिल्कुल ठीक है. ये वही सेक्शन में ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ आगे शैल बी इंक्लूडेड नो. तो इसमें 1 and 3 ठीक हो गए. 1 and 3 are true and 2 और 4 are false. So C is the answer. And सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है ये 24 ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट. Next is 4, in case of a gift if donor dies before acceptance the gift shall be void. C is the answer. गिफ्ट काम में प्रोवाइड किया गया 122 TPA में. Next is 5, lease of vacant building is provided under which section of HP Urban and Control Act? ये section 19. B is the answer. Next 6, where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant within a time referred to in section 20, or refuses or neglects to deliver the receipt referred to therein, or where there is a bona fide doubt as to person or persons to whom rent is payable, the tenant may deposit the rent with the controller. Obviously A is the answer. कोई भी किसी भी स्टेट का आप देख लो, अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट, हर जगह यही प्रोविजंस हैं. सेक्शन थोड़े अलग अलग हो सकते हैं बस. डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट कहाँ पर? सेक्शन 21 में. नेक्स्ट 7, when the fair rent of a building or rented land has been fixed under section 4, no further increase or decrease in fair rent shall be permissible for a period of. Next is 8, as per section 30 of HP Urban and Control Act, if specified landlord who having evicted tenant from a building in pursuance of an order made under subsection 2 of 15 does not occupy it for a continuous period of 3 months from the date of such eviction, or let out the whole or any part of such building from which the tenant was evicted to any person other than the tenant shall be punishable with the following penalties. कितनी पेनल्टी है? 6 months and 1000 rupees. B is the answer. और ये 30 के सब सेक्शन 3 में ही मेंशन किया गया है. Next is 9, the controller shall not reopen the issues that have been substantially decided in former proceeding or have been settled finally in previous final orders. The statement is
ट्रू, ए इज द आंसर। ये बिल्कुल ठीक है, ए इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 18 ऑफ HP अर्बन लैंड कंट्रोल एक्ट में। नेक्स्ट 10, ए ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड डायरेक्टली टू एन अनबोर्न पर्सन, द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेक्शन 13 बात करता है ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन, तो थ्रू ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 11, एज पर TPA प्रोविजन द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। नहीं होता, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं होती, ग्रास नहीं होती, तो नन ऑफ दिस का आंसर रहेगा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट वेयर X transfers a farm F to Y on condition that he shall marry X's daughter D. At the time of transfer, D was dead. A transfer F is void. B is the answer. सेक्शन कौन सा है? 25 कंडीशनल ट्रांसफर, एंड आप उसके लिए स्टेशन दे सकते हैं, स्टेशन बी। नेक्स्ट 13, सेक्शन 6 ऑफ TPA प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मेरा राइट टू ट्रांसफर नहीं हो सकता, पब्लिक ऑफिस सैलरी नहीं हो सकते, चांस ऑफ एयर अपेरेंट नहीं हो सकते, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें नन ऑफ द अबव कैन बी ट्रांसफर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 14, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। यस, बिल्कुल ठीक है। Inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. Yes, बिल्कुल ठीक है। Both statements are true. A is the answer. ये एक repeated question है, HP सीरीज में हमने किया है ऑलरेडी ये। Next 15, Bank of India versus OP Savrankar is an important judgment on the following issues. ये है invitation to offer. D is the answer. Section 16, the following is the object of the law of limitation. There should be end to litigation. Yes. Virantibus non dormantibus jura subvenient. Yes, बिल्कुल ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? Law helps the vigilant and not the dormant. जो सोता है उसके लिए कोई हेल्प नहीं है। और इसकी भी लीगल मैक्सिमम कौन सी? इंटरेस्ट रिपब्लिका ut sit finis litium। बोथ हो गए, सी इज द आंसर। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17, द हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पारसीज पर नहीं होता, इन दिनों पे होता है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 18, द प्रोविजन ऑफ स्पिंडा मैरिज इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ एक्सोगैमी। ए इज द आंसर। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसी HP सीरीज में आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट 19, मैच करने हैं अब सेक्शंस हिंदू मैरिज एक्ट के। जुडिशियल सेपरेशन कितने में है? 10 में। वर्डेबल मैरिज है ये 12 में, वर्ड है 11 में, डाइवोर्स 13 में। तो क्या बन गया? 2413। जो 2413 ये रहा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 20, ए मैरिज में बी सोलनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कंडीशंस कहाँ मेंशन की गई हैं? सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। पहला क्या है? Neither party is incapable of giving valid consent due to unsoundness of mind. ये बिल्कुल ठीक है। Neither party has spouse living at the time of marriage. ये ठीक है। Parties are not within the prohibited degree. ये बिल्कुल ठीक है। तो D इसका आंसर हो गया, all of the above. Next 21, where once time has begun to run, no subsequent liability or inability to institute a suit or make application stops it. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है ये 9। A is the answer, लिमिटेशन एक्ट में। Next 22, the period of limitation for suit relating to contract is 3 years. का मेंशन किया गया है ये मेंशन किया गया है Schedule of Limitation Act Division 1 and Part 2. Next 23, in completing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. B is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 12 में of Limitation Act. Next 24, the period of limitation for suits relating to immovable property for foreclosure by a mortgagee is 30 years. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? Article 63 of Schedule of Limitation Act. Next 25, where in any case a suit or application is based upon fraud or mistake, the period of limitation shall not begin to run until है ये until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or mistake. The statement is true. और प्रोवाइड कहाँ किया गया? सेक्शन 17 में। तो 2 and 3 आर करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी इज द आंसर। नेक्स्ट 26,
अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन, किस पर है ये केस, कौन सेक्शन पर है ये? 13B पर, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 27, इन सीमा वर्सेस अश्वनी सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द फॉलोइंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सी इज द आंसर। सेक्शन 8 पर है ये हिंदू मैरिज एक्ट पे। नेक्स्ट 28, ट्रीटिंग द स्पाउस विद क्रूअल्टी इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, दिस हैज बीन हेल्ड इन विच केस? ये था समर घोष वर्सेस जया घोष, इक्वलिटी पर है ये केस। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 29, विद रेफरेंस टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैच करना है लिस्ट को। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन का मेंशन किया गया है सेक्शन 6 में, एंड पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन ये सेक्शन 9, मेंटेनेंस टू वाइफ 18 है, अमाउंट मेंटेनेंस 23 है। तो क्या बन गया? 2143। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 30, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। अब देखिए इस पर जो है ना, पहले जो 2018 का पेपर था उसमें मैच द फॉलोइंग पूछा था क्वेश्चन ये। तो सेक्शन 13 है वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 31, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट? सेक्शन 18। ए इज द आंसर। 2018 में पूछा है 19 पे, तो कितना मतलब रिलेटेड से है ये क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल पर क्वेश्चन पूछा गया 2018 में भी। देखो मतलब कितने मतलब रेलिवेंसी है पेपर्स की आपस में। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल लीडिंग इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ केस दैट सेट्स बेसिक रूल ऑफ डिटरमाइन कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज फ्रॉम ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे बिल्कुल ठीक है ये, ट्रू। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 33, एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज इज वॉइड। सी इज द आंसर। देखिए इसको भी जो है ना उसमें पूछ लिया था मैच द फॉलोइंग में, सेक्शन 26 है इसका। देखिए भाई डिस्कस भी किया है मैंने, CMTLUW, CMT लव से याद कर लो आप इसको। 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, सारी वॉइड हैं ये। 26, 27 मैरिज, 26 ट्रेड, 27 लीगल प्रोसीडिंग्स, 28 अनसर्टेन, 29 वेजरिंग, 30। Next 34, to establish undue influence, a person is deemed to be in position to dominate the will of another where he holds a apparent authority, real or apparent authority of the other, yes. He stands in fiduciary relation to the other, yes. He makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or personally affected by reason of age, illness or mental or bodily distress. तो ऑल ऑफ द इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहीं पर ही लिखा हुआ है। 35, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। कौन सा सेक्शन है ये? 2E। सी इज द आंसर। 2B क्या है? प्रॉमिस की डेफिनेशन है। 2D क्या है? कंसिडरेशन की। 2H किसकी डेफिनेशन है? कॉन्ट्रैक्ट की। Next 36, the contract where one of the party has almost nil opportunities to bargain over the special terms of the agreement, whilst the other, usually the big corporate, is in position to dictate the terms। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली ये पूछ रहे हैं। ये होते हैं एडेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। डी इसमें आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी। Next 37, as per the Indian Contract Act, the communication of an acceptance is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। यह बिल्कुल ठीक है। as against the proposer when it put in the course of transmission as to be out of the power of acceptor, बिल्कुल ठीक है। ये सेक्शन 4 है ये ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोनों ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सी इज द आंसर। Next 38, A applies to a banker for a loan at a time when there is stringency in the money market. The banker declined to make the loan except at an unusually high rate of interest. A accepts the loan on these terms. The contract क्या है? Valid and not induced by undue influence. A is the answer, and this is illustration in section 16 of Contract Act. ये है illustration D. Next 39, A lends a horse to B for his own riding only. B allows C, his close friend, to ride the horse H. C rides H with care but the horse falls accidentally. Both H and C are injured. B is liable होगा या नहीं होगा? A का हॉर्स है ऑब्वियसली, तो हॉर्स को एक्सीडेंटली फॉल हुआ है, चला कौन रहा था उस टाइम पर? C।
उसने अलाउ किसको किया था? बी को, मतलब सी जो है विदाउट अथॉरिटी चला रहा है, तो लायबल कौन होगा? बी लायबल होगा, बी ने अलाउ किया उसको, तो बी इसका आंसर रहेगा। बी इज लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू ए। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट? द एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 30 है, 23 नहीं है। नो सूट शैल बी ब्रॉट इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी वेजर, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा हुआ है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू इसमें एक ही है, तो ए इसका आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं। द अमाउंट वन अंडर वेजरिंग कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। एनी फ्रेश प्रॉमिस टू पे मनी वन अंडर द वेजर इज ऑल्सो वॉइड, इसे बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ये ठीक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड to receive from the party causing such breach which of the following compensation for any loss or damage caused to him thereby that arose naturally in usual course of things of such breach? Yes, obviously. तो यहाँ पूछ रहे नॉट एंटाइटल्ड, ये तो एंटाइटल्ड है। दैट द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ इट, ये भी मिलता ही है। तो नॉट एंटाइटल्ड कौन सा है फिर? दैट वर टू रिमोट एंड इनडायरेक्ट, ये नहीं मिलेगा। इसके लिए कौन सा केस है? अगर आप देखें तो हॉब्स वर्सेस लंदन रेलवे, सुना हो आपने अगर, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ माइनॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ? तो खान गुल वर्सेस लाखा सिंह ये है, अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल ये भी है, मोहरी बीबी धर्मदास को ये तो है ही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 43, इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ओनली द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। तो क्या है ये है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली बी इज द आंसर। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि सिर्फ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन गिव कंसिडरेशन एंड नोबडी एल्स, वो होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, it is of such a nature that if permitted would defeat the provision of law, involves implying injury to the person property of another, all of the above, डी इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन कौन सा है ये सेक्शन है 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 45, एक्स कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी वाई बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू जेड एंड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। तो क्या इसमें ऑप्शंस है? एक्स मस्ट पे कॉम्पनसेशन टू वाई फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, ये होगा यस। फिर है एक्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कंपनसेट वाइफ अंडर एनी लॉ, ये तो हो गया रॉन्ग। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इटसेल्फ वॉइड, ये है बिल्कुल ठीक। इसमें आंसर क्या रहेगा? 1 and 3 आर करेक्ट, बी इज द आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो वॉइड है तो फिर कॉम्पनसेशन क्यों देंगे उसको? देखिए जो ये एक्स ने छुपाया है ना इस चीज़ को कि भाई वो ऑलरेडी मैरिड था और फॉरबिडन बाय लॉ भी है, फिर भी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वाई से, तो आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करवा नहीं सकते, बट ऑब्वियसली डैमेजेस यू कैन क्लेम, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 46, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड ओनली द कंट्रोल ऑफ रेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ अर्बन एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नहीं, रेंट्स एज वेल एज इविक्शन के लिए भी है, तो देखिए ये लिखा हुआ है एज वेल एज इविक्शन विद इन दी अर्बन एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये हो गया ठीक। फिर लिखा ओनली फॉर इविक्शंस, नो, तो 1 and 3 जो है इनकरेक्ट हो गए, 2 इज करेक्ट, तो बी इज द आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट 47, मैच करने हैं ये टीपीए के सेक्शंस हैं। तो कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन कितने में है? सेक्शन 10 में। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट 21 है, पार्ट परफॉर्मेंस 53A है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी 14 है। तो क्या बन गया? 3421, 3421 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 48, राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी इज अ केस ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज, ये केस किस पे है? वेस्टेड इंटरेस्ट पर, ए इज द आंसर। अभी बताया सेक्शन 14, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कहाँ है? 21 में। गिफ्ट सेक्शन कौन सा है? 122। स्पेस सक्सेशनिस्ट कैन नॉट ट्रांसफर, सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 49, with reference to doctrine of lis pendens, read the following. It refers to fraudulent transfer
नहीं, फूड एंड ट्रांसफर के लिए नहीं है, उसके लिए कौन सा है, उसके लिए है 53। फिर इट इम्पोजेज द प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर और अदर डीलिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट प्रोवाइडेड द कंडीशन लेड डाउन इन द सेक्शन आर सेटिस्फाइड, बिल्कुल ठीक है। इट क्रिएट्स ओनली राइट टू बी एनफोर्स टू अवॉइड ट्रांसफर मेड पेंडेंटलिटी, ये बिल्कुल ठीक है। फिर सच ट्रांसफर्स आर अवॉइडेबल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी सी डी आर करेक्ट, बी इज द आंसर। डिपेंडेंट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 52। नेक्स्ट है 50, हरिदास शर्मा वर्सेस विकास सूद pertains to the following section of HP Rent Control Act before the Rent Controller शिमला। क्या बोला गया था इस केस में? इस केस में बोला गया था कि जो सेक्शन 14 का 4 है, where landlord applied for the eviction of the respondent the building on the ground that he is bona fide required the building for the purpose of addition alteration of the building or rebuilding। तो ये इस पर था कि सेक्शन 14(4) पर सी इसका आंसर रहेगा। बाकी अभी पढ़ सकते हैं, पर इसमें था नहीं, सेक्शन ही लिखे हुए हैं ये। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2017 पेपर सिविल लॉ 2। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.